Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So in today's video, we are going to discuss the entire architecture admission process. Now you already know that recently only the JEE BArch 2024 final results were out. So you have already seen your results, I hope, and now you are confused that ab kya kare? What is the next step? How to take admission? Suppose your rank is 5500, 200, 1, 2, 3 single digit rank है, कुछ भी आपका rank है, every single student is confused that what is the next step, how do you have to get admission, and the students who have scored a certain rank, they're also confused that whether you will get admission through this rank or not. So you keep asking through the comments or keep calling us regarding this thing that if you can get a college with this rank or not, if a certain college is good or not. So there are these common confusions that is there in everyone's mind, and today I'm going to clear all these confusions. I think the board results are also out. I guess नाटा का भी सब लोगों का first second attempt तो हो ही गया है at least, and you already know that every Saturday Sunday there is NATA examination. It started from 6th of April and 5 to 10 days में results आ जाते हैं नाटा के भी. तो अभी सब बच्चों का ऐसा है कि नाटा का भी रिजल्ट एटलीस्ट 1-2 अटेम्प्ट का तो आ गया है, बोर्ड्स का भी आ गया और जेई का भी आ गया है. ठीक है, रिजल्ट्स सारे आउट हैं. Now the next step is the major confusion amongst all of you, right? Previously also the videos I have made, so they are on like individual topics. For example, in one video I'm talking about JOSA counseling, in one video suppose I'm talking about how to select a good architecture college. So there is not a single video in which there is a full guidance available, I guess. So that is why I thought that this time I will make a video which is like self-sufficient, चाहे ये थोड़ी लंबी हो जाए, but if you watch this video till the end, you are going to 100%, like all doubts will be cleared after this video. Okay, so I want all of you to please stay in this video till the end. ओके आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगी, एवरीथिंग दैट यू शुड पॉसिबली नो. एंड प्रोबेबली yes, your confusions will be clear after this video. Still, if you have any confusions, you can always drop a comment down in the comment section below. I will try to reply it. Okay, now let us get started with the video without much introduction. Alright guys, so as you know, if you want to take admission into architecture, you have to go through either of the two entrance examinations or both of the entrance examinations. One is NATA and one is JEE BArch. Now I'm going to talk about what are the different ways in which you can take admission into an architecture college, all the possible ways actually. Okay, so firstly you have to understand that there are almost about 400 plus colleges of architecture in India, although this list keeps getting updated every year. So थोड़ा बहुत ये changes होते रहते हैं because the colleges where the seats are very very empty या फिर seats full नहीं हो पाती हैं, तो COA उन colleges को हटाता रहता है अपने list से. तो ऐसा होता है कई बारी जो कॉलेजेस होते हैं उसमें सीट्स भी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती हैं. तो दीज small changes are happening every single year, but roughly there are almost like 410-420 architecture colleges in India that you can choose from. Okay, now there are basically 4 categories into which the admission process is divided. One is JOSA counseling, one is state counseling, then individual college counseling, that is the direct admission in the private colleges, I would say, and another is university counseling, where there is a university. So suppose if you talk about IP University which is in Delhi, है ना, तो जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इसके अंडर बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस हैं. लाइक इसके अंदर यूसैप है विच इज़ द बेस्ट, देन इसके अंदर MBS है, आई थिंक इसके अंदर वास्तुकला है, ठीक है, उसके बाद DTC भी है. तो देर आर डिफरेंट कॉलेजेस विच आर अंडर द सेम यूनिवर्सिटी. सो यू हैव टू अप्लाई इन टू द काउंसलिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर मेरिट स्कोर you will be allotted either of the 4-5 whatever colleges are there under this university. Okay, so this is what the university counseling means. If you talk about JOSA counseling, you already know JOSA counseling is basically happening after the JEE paper 2 or the JEE results, है ना. तो JOSA counseling around mid June में शुरू होता है,
तो बस नेक्स्ट मंथ शुरू होने ही वाला है एंड आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स अबाउट जोसा काउंसलिंग. सो सपोज यू हैव गॉट अ गुड रैंक इन योर JBR एग्ज़ाम, है ना. अगर आपके एक अच्छा खासा आपका रैंक आया है तो डेफिनेटली आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो यू विल गेट अ कॉलेज. बट द स्टूडेंट्स हैव दिस कन्फ्यूजन दैट व्हाट रैंक एग्जैक्टली. अगर मेरी 6000 रैंक आई है तो क्या ये अच्छी है, क्या मुझे इसमें कोई कॉलेज मिलेगा. अगर मेरी 3000 रैंक आई है, अगर मेरी 30,000 भी रैंक आई है, देन ऑल्सो स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज दैट नाउ व्हाट टू डू, विल आई गेट अ कॉलेज और नॉट थ्रू जोसा. सो आई विल टेल यू हाउ टू चेक दैट एज वेल, दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर विच कॉलेजेस. आई वुड से सब कुछ मैं बताऊंगी, ठीक है. स्टेट काउंसलिंग बेसिकली होता है डिफरेंट स्टेट्स का. नॉट एवरी स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग देयर स्टेट काउंसलिंग, बट मेनी स्टेट्स डू एंड आई विल टॉक इन डिटेल दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग ऑप्शंस अवेलेबल. कि आर्किटेक्चर में जो स्टेट काउंसलिंग्स होते हैं तो कौन कौन सी स्टेट के होते हैं, और उनमें से ऑफकोर्स इफ़ यू वांट टू गो इन अ पर्टिकुलर स्टेट एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट्स कॉलेज, देन यू हैव टू अप्लाई इनटू द स्टेट काउंसलिंग. अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि सपोज देयर इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, okay, that private college can take admission through state counseling also, and it can take admission through डायरेक्ट एडमिशन्स ऑल्सो, लाइक जो मैनेजमेंट वाली सीट्स होती हैं. तो एक कॉलेज में दोनों जगह से एडमिशन्स आ सकते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज है तो वो सिर्फ स्टेट काउंसलिंग से लेगा या सिर्फ मैनेजमेंट से लेगा, ठीक है. तो वो दोनों से भी ले सकता है, ओके. एंड ऑल्सो स्टेट काउंसलिंग से क्या होता है दैट इफ यू गेट अ पर्टिकुलर कॉलेज अलॉटेड वाया स्टेट काउंसलिंग, दैट कॉलेज कैन नॉट डिनाई यू टू गिव एडमिशन, ओके. तो आपको वहाँ पे एडमिशन फिक्स्ड ही है. अगर वो आपको अलॉट हो गया तो जस्ट यू हैव टू पे द फीस आफ्टर यू गो टू द कॉलेज, तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. बट मैनेजमेंट सीट्स में क्या होता है कि उनके अपने क्राइटेरियाज हो सकते हैं. इंटरव्यू राउंड में मे बी आप पास ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. इफ़ इट्स लाइक अ गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो मैनेजमेंट सीट्स में वो उनका अपना डिसीजन है, ओके. तो चलो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ. अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, बट अभी आई विल टेल यू अबाउट ऑल द डिफरेंट थिंग्स, ओके. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट जोसा काउंसलिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द JEE रिजल्ट, ओके. सो आई एम पर्टिकुलरली गोइंग टू टॉक अबाउट JEE पेपर 2 ओनली, विच इज़ फॉर आर्किटेक्चर, बिकॉज वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर. जोसा काउंसलिंग बीटेक वालों के लिए भी होता है, जिसमें उनको IITs एंड IITs इनमें एडमिशन मिलता है. ऑब्वियसली ये तो तुम्हें पता ही होगा, बट क्योंकि हमने JEE पेपर 2 का प्रिपरेशन किया है, JEE पेपर 2 दिया है, तो हमें इसके अराउंड फोकस करना है कि इससे हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, okay, if you want to do architecture. So it will obviously start around mid-June, and these are the colleges which you get through JOSA counseling. I think there is one more addition in the list. I don't know if I missed it last year या फिर last year भी था, I really don't know, but there is also one addition in like it's a college in Katra, जम्मू कश्मीर. तो वो एक न्यू मैंने देखा लिस्ट पे. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे चेक करना है. तो बेसिकली द टॉप कॉलेजेस थ्रू जोसा काउंसलिंग विच यू कैन गेट एडमिशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द 3 SPAs, SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा, SPA भोपाल एंड NIT Calicut and NIT Trichy. So these 5 colleges are the best, ठीक है. अब आप बोलोगे कि मैम मेरी रैंक है 2000, तो क्या मुझे इन 5 में से किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. देखो, बेसिकली यू डोंट नीड टू आस्क मी, यू कैन चेक इट योर सेल्फ दैट विच कॉलेजेस यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन, एंड आपके किन कॉलेजेस में होने के चांसेस हैं ये आप खुद ही चेक कर सकते हो. सो हाउ यू कैन चेक दैट? बेसिकली यू हैव टू ओपन गूगल एंड यू हैव टू राइट जोसा काउंसलिंग कट ऑफ, okay. When you will write JOSA counseling cutoff on Google, the first link opening and closing rank, you have to click on that. तो इस तरीके से एक आपका पेज खुलेगा. Here you will select round 6 for example, then you will select the institution type. तो all मतलब all select कर लो, ठीक है. इंस्टीट्यूशन नेम में भी सारे देख लो. एंड राउंड 6 में इसलिए देख लो बिकॉज दिस इज द लास्ट पॉसिबिलिटी. इफ आई टॉक अबाउट राउंड्स, व्हाट आर दीज राउंड्स? सो बेसिकली सपोज इन राउंड 1 what is happening, the students who have got rank 1 to 10, फॉर एग्जाम्पल किसी की रैंक है रैंक 3, AIR 3 है किसी की, उसका पहला प्रेफरेंस है SPA दिल्ली, उसकी AIR 3 है, तो उसको डायरेक्टली फर्स्ट राउंड में ही SPA दिल्ली मिल जाएगा और वो अपना सीट भी कंफर्म कर सकता है राइट आफ्टर दी फर्स्ट राउंड, ओके. बट सपोज कि देर आर 40 स्टूडेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड SPA दिल्ली,
in the first round, but not all 40 students will take admission. Maybe some are preparing for BTech, maybe किसी ने ऐसे ही दे दिया हो, maybe कोई 11th में हो तो अभी एलिजिबल ही ना हो, maybe किसी के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हो, maybe किसी के 75% से ऊपर ही ना हो बोर्ड्स में, because yes, if you want to take admission through JOSA counseling in the SPs and NITs, then you should have 75% plus in your boards marks. तो वो भी कभी कभी eligibility meet नहीं होती है, तो there are various reasons that not all 40 students will take admission. Okay, so after that in the second round they will like shift towards higher ranks, and then they will give the allotment letter to those ranks. तो उसमें भी होगा कि चलो कुछ बच्चे नहीं लेंगे, फिर थर्ड राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा, and so on and so forth. So till sixth round, all the seats almost gets filled up for all the colleges through JOSA counseling. This is what rounds are. So we are checking the last possibility, that is the sixth round we are going to check for. Okay. Now for the academic program, obviously you have to search for architecture. Okay, so architecture 5 years. This is very important guys, because you don't have to see the BTech वाले courses. तो हमें अपना architecture का देखना है. उसके बाद अगर seat type है तो हम लोग देखो, there are different kinds of reservation: SC, Open, PWD, ST, EWS. So these are the different types of reservation. Open is like the normal general category, right? So if you want to specifically check for these reservations, because the students who are from the reservation categories, suppose if you are from EWS category, so you will get a different EWS rank apart from your CRL. So CRL is the normal all India rank that you are getting, and then you will also get a separate reservation rank. तो मान लो किसी की रैंक है 2000 नॉर्मल CRL, मतलब वो नॉर्मल पूरे इंडिया में जितने बच्चे अब लाइक रिगार्डलेस ऑफ द रिजर्वेशन, तो वो 2000 रैंक पे है, बट मे बी EWS कैटेगरी में वो मे बी 15th रैंक पे है या 200 रैंक पे है. तो देर इज अ डिफरेंट EWS रैंक लाइक रिजर्वेशन रैंक एंड अ डिफरेंट CRL. ओके, सो आई विल नाउ शो यू द लाइक ऑल कैटेगरीज का मैं दिखाऊं, बट अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक का सर्च करना है तो आप वो भी अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो. नाउ हियर यू विल गेट अ एंटायर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विच गिव्स एडमिशन थ्रू जोसा काउंसलिंग फॉर आर्किटेक्चर. सो दीज आर द ओनली कॉलेजेस अवेलेबल. ना आपको लगेगा ये तो बहुत सारे कॉलेजेस है. देखो ऐसा नहीं, बहुत ही कम कॉलेजेस हैं. मान लो 10-12 कॉलेज हैं बस, और बस यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो IIT खड़गपुर बहुत बार लिखा हुआ है, सो इट्स गेटिंग रिपीटेड बिकॉज यहाँ पे वो बार बार अलग अलग रिजर्वेशन के लिए ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बताई गई है, तो इसीलिए ये बहुत ही कम कॉलेजेस है एक्चुअली में. एंड इफ यू टॉक अबाउट IIT खड़गपुर, इफ यू टॉक अबाउट IIT रुड़की, एंड इफ यू टॉक अबाउट IIT Varanasi, then these 3 campuses are IITs and they don't give admission through JEE ARC. So you have given JEE ARC, राइट, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IITs. तो ये जो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिख रही है 13,000, 23,000, okay, and all these closing ranks that you can see over here, these are the normal BTech वाले जो रैंक्स हैं, ये वो हैं, ठीक है, जो JEE पेपर 1 देते हैं उनका है ये. तो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू IITs through JOSA counseling, or if you want to take admission into IITs, you first have to give JEE paper 1, then you have to qualify that is normal JEE mains, right? Then you have to qualify the advanced, जो advanced वाला होता है वो, and then you have to give AAT, which is architecture aptitude test. So that is why guys, this is a very different process of getting into IITs, and we don't prepare for IITs. तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, because this is something that almost जो BTech के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, but last moment पे they take admission into architecture, so almost it's like that. So you have to just skip these IITs and come below towards the other colleges. So there is Malviya National Institute of Technology, which is NIT जयपुर, whatever. तो यहाँ पे अब आपको अलग अलग कॉलेजेस दिख जाएंगे, है ना. वॉट एवर कॉलेज यू कैन गेट थ्रू जोसा काउंसलिंग, एंड देर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक. अब IITs के नीचे जो भी कॉलेजेस हैं वो सब JEE पेपर 2 से ही देते हैं. सो दिस इज ऑल योर JEE पेपर 2 रैंक विच इज गिवन ओवर हियर. ऑल्सो प्लीज सी द कैटेगरी. यहाँ पे ये OS इज अदर स्टेट, and this is the normal reservation categories which are there. तो अगर आपका रिजर्वेशन कोई नहीं है, if you are from general category, suppose you want to take admission into National Institute of Technology NIT Calicut, if you want to take admission, so you have to check the proper opening and closing rank. कुछ गलत मत चेक कर लेना. फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ फर्स्ट वाली चीज़ देख रहे हो, ये वाली जो फर्स्ट वाला लिस्ट देख रहे हो, here you can see HS is written over here, okay, HS, this is home state. अगर आप
होम स्टेट से हो, जहाँ पे ये कॉलेज है NIT कैलिकट, अगर आप उसी स्टेट से हो, नॉर्मल जनरल कैटेगरी है आपकी, तो आपका ओपनिंग रैंक 60 गया है. दिस इज फॉर लास्ट ईयर. ओके, लास्ट ईयर स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड 60 रैंक एंड दैट स्टूडेंट वाज फ्रॉम होम स्टेट जनरल कैटेगरी, उसको एडमिशन मिला. ठीक है, और लास्ट जो क्लोज हुआ है दैट इज एट 163, तो जिसकी रैंक 163 थी और वो होम स्टेट से था, जनरल कैटेगरी से था, उसको NIT कैलिकट में एडमिशन मिला. इससे ज़्यादा फिर रैंक्स को नहीं मिला है. ठीक है, तो हियर इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, सो यू हैव टू चेक दैट. So you don't need to ask me in the comment section below, because I will not check for all the individual students and reply to you. If you ask me that मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस कॉलेज में मिल सकता है कि नहीं, I will not reply you. ठीक है, I know comments like that will come, so I will recommend you कि ऐसे comments मत करो, खुद ही check करो, because I will also check over here only. So better that you can check on your own कि आपको कौन से colleges में admission मिल सकता है through JOSA. It's all right in front of your eyes. So suppose you want to take into NIT कैलिकट बट यू आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो आपका होम स्टेट रिजर्वेशन तो लगेगा ही नहीं, तो आपको ये वाला देखना है. देखो, तो यहाँ पे आपको OS देखना है, अदर स्टेट, एंड देन यू हैव टू सी द जनरल कैटेगरी. अब यहाँ पे देखो कि कहाँ पे ओपनिंग रैंक है और कितनी है क्लोजिंग रैंक. तो जिसकी 347 रैंक है उसके बाद नहीं मिला है, तो अगर आपकी 347 से ज़्यादा रैंक है तो चांसेस आपके बहुत कम हैं कि आपको NIT कैलिकट मिल पाए, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो. सो दैट इज़ द मेन थिंग गाइज, दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट कॉलेजेस यू माइट गेट. अब मान लो कि 347 पे लास्ट ईयर मिला है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है हर साल, तो मे बी इस साल 400 तक वालों को भी मिल जाए, मे बी चलो मार्क्स ना समझो 500 तक वालों को मिल जाए. उसके आगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट यू विल गेट NIT कैलिकट, राइट? Even if your rank is 350, then also you are on edge only, then also you might not get NIT Calicut. So then you have to select the colleges accordingly. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी रैंक है अंडर, मे बी इफ योर रैंक इज अंडर 100, okay, and you are expecting SPA Delhi, that if you will get SPA Delhi or not, so just go to SPA Delhi, है ना. यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्मल हम लोग, अच्छा SPA Delhi जो है ना, यहाँ पे there is no home state reservation, okay, because SPA Delhi comes under state not SPA Delhi doesn't come under state government, ठीक है, it's a centrally funded institution. तो SPA Delhi में होम स्टेट कोटा नहीं लगता है, उसमें ऑल इंडिया के बेसिस पे ही, लाइक देर आर रिजर्वेशंस ऑब्वियसली, जैसे PWD, EWS, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन इसमें रहता है, बट होम स्टेट कोटा इसमें नहीं लगता है. तो अगर आप दिल्ली से हो तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा इन शॉर्ट इसमें एडमिशन लेने में. ठीक है, सो फॉर SPA Delhi यू कैन सी the closing rank last year was 138. लास्ट 6th राउंड की बात कर रही हूँ. तो अगर आपका रैंक है 200 है तो बहुत मुश्किल है that you will get into SPA Delhi. But if your rank is under 100, then yes, it is very much possible, it is 100% sure that you will get admission into SPA Delhi. Okay, so this is how you have to check the closing ranks of all the colleges. Now, it is very important to make a list of 3 preferences that you like. देखो, अगर आपकी रैंक है 30,000 तो आप छोड़ दो, मतलब इवन डोंट चेक दिस वेबसाइट, ओके, बिकॉज आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है. अगर आप 6th राउंड में देखो तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितने कम रैंक्स हैं. ओके, इट्स इन लाइक 3 digits लिटरली. 30,000 वालों को तो कहीं भी नहीं एडमिशन मिलने वाला है, बिकॉज देर आर वेरी लेस कॉलेजेस आई थिंक. ओके, एंड ऑल्सो देर वॉज वन एडिशन दैट वॉज दिस श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज अ न्यू एडिशन आई गेस. ये कॉलेज मैंने पहले नहीं देखा है, हो सकता है लास्ट ईयर भी हो, बट पता नहीं यार, बहुत न्यू ही आया होगा ये ज़रूर. तो दिस इज़ अ न्यू एडिशन थ्रू जोसा. ओके, तो आपको अब समझ आ ही गया है कि किस तरीके से आपको देखना है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. ठीक है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको देखनी पड़ेगी. अब आपकी बहुत ज़्यादा अगर रैंक है, मान लो अगर 10,000 भी है, या इवन अगर आपकी 7,000 भी रैंक है, तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है. ओके, बहुत ही कम रैंक्स जाती हैं. और जो बाकी भी, अगर आपकी मान लो 2,000 भी रैंक है, तब भी आपको बहुत अच्छे कॉलेज में मिलना ही नहीं है. देन ऑल्सो इट्स जस्ट कि मिल सकता है मे बी इनटू सम NITs, और मे बी इफ़ यू हैव रिजर्वेशन देन इट इज़ पॉसिबल. तो काफ़ी ज़्यादा
डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही क्रीम बच्चों को ही वो लोग लेते हैं, मतलब क्रीम बच्चों क्या, वो कम रैंक्स वालों को ही लेते हैं, ज़्यादा कॉलेजेस हैं ही नहीं ना, तो कैसे लेंगे ज़्यादा बच्चे, कॉलेजेस होंगे तभी तो लेंगे, जब कॉलेजेस ही 10-12 हैं तो ऑब्वियसली सीट्स भी नहीं हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के रैंक वाले हैं उनको ही एडमिशन मिलता है, ठीक है। नाउ आपको अगर इफ़ योर रैंक इज़ लाइक अंडर 2000 एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अगर आपकी SC ST या कोई रिजर्वेशन है तो अगेन आप उसको भी अपने हिसाब से देख लेना कि अगर आप एलिजिबल हो रहे हो कि नहीं। बेसिकली कोई भी आपकी कितनी भी रैंक हो, गो टू द जोसा काउंसलिंग वेबसाइट एंड चेक योर सेल्फ वंस, ठीक है। खुद ही देखो अपना, मेरे पे तो क्या ही ट्रस्ट करें, मैं आपको सब दिखाई देगी कैसे देखना है, ठीक है। तो आपको अपने प्रेफरेंसेस, 3 प्रेफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे। फर्स्ट आपको ऐसा कॉलेज ढूंढना है जिसमें आपको लग रहा है कि टफ है होना, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मान लो आपकी रैंक है 2000, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे SP दिल्ली को रखो, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है आपको SP दिल्ली नहीं मिलने वाला है, तो आपको ये सोचना है कि दिस इज नॉट समथिंग आई कैन गेट, तो उसको प्रेफरेंस में नहीं रखना है। टफ टू गेट इनटू मीन्स दैट सपोज यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, योर रैंक इज मे बी 250, okay, but last year the closing rank in 6th round for SP Delhi was 139, तो ठीक है 250 में आप सोच सकते हो कि ओके दिस इज टफ टू गेट बट स्टिल आई कैन चूज SP Delhi एज नंबर 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपको रखना है मॉडरेट, मतलब मॉडरेट में जो आपको अगेन थोड़ा सा टफ हो बट आपको लग रहा है कि अब बिल्कुल एज पे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक है 250, तो जिस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक है सपोज 249 है या 238 भी है, चलो मान लो ऐसा कुछ है, एंड योर रैंक इज 250, देन दैट शुड बी इन योर थर्ड प्रेफरेंस। लास्ट प्रेफरेंस इज आपको जो इजीली लगता है कि मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल योर रैंक इज 250 एंड क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर इन 6th राउंड वाज सपोज 300, तो ये कॉलेज आपको रखना है थर्ड पे। जो आपको लगता है यार ये तो इजीली मिल जाएगा, मतलब अगर 300 पे लास्ट ईयर गया है तो ठीक है मेरे को तो मिल सकता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस दैट यू हैव टू शॉर्टलिस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट दैट आई हैव टोल्ड यू। तो ये आपको खुद ही वेबसाइट पे देख के अपने रिजर्वेशन के हिसाब से, होम स्टेट हो या क्या रिजर्वेशन है वो आपका अलग इंडिविजुअल सिनेरियो रहेगा, तो मैं सबके लिए चेक नहीं कर सकती हूँ, आपको ये खुद ही अपने लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको रिजर्वेशन अपने माइंड में रखना है इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग। नाउ अगर आपको लग रहा है कि जितने कॉलेजेस हैं लिस्ट में, है ना, जितने कॉलेजेस हैं वो सारे आपके लिए टफ हो रहे हैं या इम्पॉसिबल हो रहे हैं, तो जोसा काउंसलिंग इज समथिंग दैट यू शुड like skip from your mind. Obviously you can participate in that अगर कभी कोई चांस हो जाए, बट वैसे आपको 99% ये होना पड़ेगा कि I will not get any college through JOSA. Then what you have to do is your another option is focus on NATA examination. Okay, you have to focus on this. स्कोर एज गुड एज पॉसिबल, जितना आप ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ही अच्छा कॉलेज आपको मिलने का चांसेस रहेगा, obviously this is for sure, okay. So this is entire process about JOSA counseling. 3 preferences जब start होगा then you will have to give 3 preferences and then you will have to sit for the JOSA counseling and then there will be different rounds, different processes, तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कैसे क्या करना है चीज़, वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो अभी के लिए आप अपने सिर्फ प्रेफरेंसेस को डिसाइड करके रख सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। Now that you are clear with JOSA counseling, now we are going to talk about a little bit more. This is something that I've already told you. इस slide में जो लिखा है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ that you are going to basically for getting admission into IITs, है ना, IITs में लेने के लिए आपको BTech वाला पेपर देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा, AT देना पड़ेगा, तो this is already I have told you, okay. Now next is state counseling, that the number 2 option was state counseling, right? So there are different state counselings and suppose कि if we talk about Haryana state counseling, तो इसमें आपको in Haryana all the colleges which offer BArc course, they will be there through the state counseling. Again there will be 3 preferences that you will have to select, है ना, 3 colleges जो आपको अच्छे लग रहे हैं in Haryana and that research you have to do on your own only, that what are the colleges which you feel are good for you if you want to go for Haryana state counseling, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको ना पहले ही शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू शॉर्ट लिस्ट द कॉलेजेस दैट यू वांट टू गो इनटू
थ्रू द स्टेट्स दैट यू वांट. सपोज आपको कर्नाटका में चलेगा एडमिशन लेना, महाराष्ट्र में चलेगा, केरला में चलेगा, आपने फाइनल कर लिया, या आपको ये सारे ही में लेना है, चलो कोई से भी में चलेगा, सब में चलेगा, ठीक है. तो आपको सब में, हर स्टेट में से यू हैव टू सेलेक्ट 3 बेस्ट कॉलेजेस दैट यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू, 3 प्रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल द स्टेट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको सब में नहीं, आपको 3 ही स्टेट काउंसलिंग में लेना है. मान लो केरला में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में. तो अगेन हर में से 3-3 सिलेक्ट करके रखो, 3 महाराष्ट्र से, 3 कर्नाटका से, 3 केरला से, ऐसे करके रहेगा. और अगर किसी भी स्टेट में चलेगा तो हर स्टेट काउंसलिंग वाले में से 3-3 करके रखो, ठीक है. नाउ हाउ यू विल सेलेक्ट दीज कॉलेजेस, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू very soon, but let's first talk about the state counseling, that what happens in this. So it is very similar to JOSA counseling only, okay, but one major difference is over here. Now in JOSA counseling you were getting admission on the basis of your JEE rank, okay. Here you are not going to get admission on only on the basis of your JEE rank or only on the basis of your NATA score. So if you want to take admission through state counseling or rather through any other process except for JOSA counseling, आपका नाटा में क्या स्कोर है सिर्फ वो ही मैटर नहीं करेगा. नाटा प्लस बोर्ड्स, और रादर आई वुड से नाटा/JEE प्लस बोर्ड्स. मतलब स्टेट काउंसलिंग में इधर यू कैन पार्टिसिपेट थ्रू नाटा मार्क्स और यू कैन पार्टिसिपेट थ्रू JEE मार्क्स, वट एवर यू हैव, लाइक वट एवर यू थिंक इज बेटर, आप उससे पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो कैसे रहता है ना कि आपका मेरिट मार्क्स कैलकुलेट होता है, ठीक है. मेरिट मार्क्स आपका क्या होता है, बेसिकली नाटा स्कोर, ओके, बाय 4 प्लस बोर्ड्स स्कोर by 2. So for example, in NATA you have scored suppose 100 marks out of 200, so you have to divide it by 4, plus suppose in boards you have scored 80%, so you have to divide it by 2. ओके, सो नाउ सपोज आपको यहाँ पे 25 आ गया, प्लस यहाँ पे आपको 40 आ गया, तो आपका मेरिट स्कोर जो बनेगा वो आपका बनेगा 65 के अराउंड, है ना. दिस इज द मेन स्कोर दैट यू हैव टू कंसिडर. यहाँ इससे होगा सारे कॉलेज में एडमिशन, डायरेक्ट में भी, यूनिवर्सिटी में भी, कैसे भी. तो देखो, अब हो सकता है कि कुछ स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ JEE-BR का स्कोर कंसिडर ठीक है. हो सकता है कि कुछ JEE-BR, कुछ जैसे कर्नाटका में वो JEE का भी एक्सेप्ट करते हैं, नाटा का भी करते हैं, ठीक है. अब जैसे महाराष्ट्र का जो स्टेट काउंसलिंग होता है वहाँ पे मान लो मोस्टली नाटा के स्कोर्स से ही एडमिशन हो रहा है, ठीक है. तो कहीं लाइक इन सम स्टेट काउंसलिंग मे बी ओनली नाटा इज एक्सेप्टेड, इन सम स्टेट काउंसलिंग मे बी ओनली JEE इज एक्सेप्टेड. सो आपको वो वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा दैट व्हाट स्कोर दे आर आस्किंग एंड व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग. तो आपको खुद से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा. तो हाउ यू हैव टू चेक इज यू कैन सिंपली गो टू द लाइक इंटरनेट. वहाँ पे जैसे आपको हरियाणा स्टेट काउंसलिंग से फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लेना है, तो यू कैन जस्ट टाइप हरियाणा स्टेट काउंसलिंग, ओके, एंड देन देयर इज द वेबसाइट HSTES वाली जो वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे अभी आई डोंट थिंक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ होगा, है ना. बट लाइक जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता रहेगा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यहाँ पे दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड ये वो. सो हियर द रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर आर्किटेक्चर कोर्स एज वेल. सो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा हरियाणा स्टेट काउंसलिंग का, सो यू हैव टू फिल दिस थिंग, ओके. यहाँ पे एज यू कैन सी कि ये पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, इनटेक एंड एडमिशंस की क्या क्या है, ठीक है ना. तो दिस इज द एंटायर स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट. ये हर स्टेट जैसे अलग अलग है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है. चंडीगढ़ का होगा, गुजरात का होगा, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, एंड देन यू हैव राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल काउंसलिंग. तो यही है सिर्फ इंडिया में स्टेट काउंसलिंग, बाकी स्टेट्स का नहीं होता है स्टेट काउंसलिंग, ठीक है. तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है. अब आपको क्या होगा कि दे विल आस्क फॉर योर नाटा/JEE स्कोर, ओके, दे विल आस्क फॉर योर बोर्ड्स स्कोर एंड दे विल ऑल्सो आस्क फॉर योर 3 प्रेफरेंसेस. मान लो आप हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में करोगे ना, तो आपको 3 प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे, ठीक है. फिर आपके मेरिट स्कोर के बेसिस पे अगेन जस्ट लाइक जोसा you will be allotted a particular colleges which you can get through your merit score, ठीक है. अगर आपका अच्छा मेरिट स्कोर बनेगा तो आपका जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा यू विल डायरेक्टली गेट दैट, अदरवाइज ऑब्वियसली आपको मुश्किल होगी मिलने में,
ठीक है. तो दिस वॉज अबाउट द इंटायर प्रोसेस ऑफ स्टेट काउंसलिंग. अब आप जितना स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो उतना आप ले सकते हो, बट अगेन आपको शॉर्ट लिस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, हर स्टेट में से कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जिसमें आपको जाना है, वो कैसे करना है, ठीक है, वही तो मेन चीज़ है ना, वो अभी आपको मैं बताऊंगी. बट लास्ट ये देख लेते हैं व्हाट इज़ इंडिविजुअल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग. तो ये तो आपको पता ही है. जामिया में अगेन अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा. जामिया का अलग से रजिस्ट्रेशन आता है. तो इंडिविजुअल कॉलेजेस का भी कुछ अलग से आता है रजिस्ट्रेशन, ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिकली. एंड यूनिवर्सिटीज़ का भी आ सकता है. सो फॉर एग्जांपल सेप्ट का भी अलग से आता है. सेप्ट रजिस्ट्रेशन हैज़ बाय द वे ऑलरेडी स्टार्टेड. सो इफ़ यू वांट टू गो एंड रजिस्टर प्लीज़ डू इट राइट नाउ, ओके, बिकॉज स्टार्ट हो चुका है. उसमें आप अपने बोर्ड्स के मार्क्स डालोगे और नाटा का एप्लीकेशन नंबर डालोगे ना, तब जाके वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. उसके बाद अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी आप नाटा का सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालोगे, फिर वो खुद ही आपका बेस्ट स्कोर देख लेंगे. एंड देन व्हेन दे विल मेक अ रैंक लिस्ट, ठीक है, मतलब मान लो आपके नाटा में है 175, बोर्ड्स में है आपके 90, आप रैंक 1 पे रहोगे प्रॉबेबली, ठीक है, तो आपको तो एडमिशन मिलना ही है. तो ऐसे करके जिसका मेरिट स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, तो आई थिंक दैट फॉर दिस टाइम द कट ऑफ फॉर सेप्ट इज गोइंग टू गेट अराउंड 85 मेरिट स्कोर, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस टाइम फ्रॉम SSAC ऑल्सो हाइएस्ट नाटा स्कोर टिल नाउ इज़ 175 लक्ष्य के हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था. एंड ऑल्सो उसके बोर्ड्स में भी अच्छे हैं, तो प्रॉबेबली हो सकता है कि उसकी 1 to 10 में रैंक हो सेप्ट के रैंक लिस्ट में भी, तो उसका तो डन ही है सेप्ट में. और मेरे ख्याल से इस बार मैं जहाँ तक अभी तक जो मैं देख रही हूँ, अराउंड मुझे लगता है 6 to 7 स्टूडेंट्स का SSAC से सेप्ट में अभी तक फाइनल है. मुझे लग रहा है कि एट द एंड 10-15 स्टूडेंट्स का हो जाना चाहिए इस बार सेप्ट में फ्रॉम SSAC. सो इफ़ इट हैपन्स इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग. But yes, now I will tell you how you can shortlist the colleges. Now this is a very important thing guys. Lastly जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सबसे important चीज़ है इस वीडियो के लिए, कि if you want to take admission, please do not blindly trust on anybody regarding this. Please, there will be many people who will be telling you that this college is good, take admission, this college is good, take admission. There are many people who do counselings and all that, but I will recommend you that please guys open your own mind. मुझे खुद भी हर महीने कॉलेज का ऑफर आता है कोई कि हमारा प्रमोट कर दो, बट वी नेवर अपलोड एनी वीडियो प्रमोटिंग एनी कॉलेज ऑन यूट्यूब. बस हमने एक बार लास्ट ईयर सुशांत के लिए डाला था, बिकॉज वी विजिटेड एंड वी रियली लाइक्ड इट. सो वी डिड एक्चुअली, एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शो यू द इनसाइड व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट्स के कैसे होते हैं, काम कैसा होता है, कॉलेज टूर. सो वी एक्चुअली अप्रोच देम दैट इफ वी कैन डू दैट, एंड आई पर्सनली रियली लाइक द कॉलेज. So apart from that, I never recommend any student. I'm not even recommending you Sushant right now. It's just I'm telling you that I have uploaded that kind of video only once on YouTube on my channel. So we also don't recommend any college to a student, because आज मैंने आपको कुछ recommend किया, if you don't like it in future, anything happens in future, you're gonna tell me. So it is a very serious matter and it's very crucial for you to decide these things on your own, and do not trust blindly on anyone. Don't trust on me, don't trust on any other counselor, any other person, your friend. Please don't trust on anybody. You have to open your own eyes and you have to do your own research. So for that, firstly you have to shortlist the colleges. Maybe आप खुद से थोड़ा बहुत देखो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस. अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके स्टेट में कौन से कॉलेजेस है जो आर्किटेक्चर एडमिशन दे रहे हैं? हाउ विल यू गेट टू नो, राइट? सो फॉर दैट ऑल्सो, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग पर्पसेज, आई हैव ऑलरेडी made a video on my channel, which is this video, list of all architecture colleges in India. If you open this video now, so you will see the complete list: Chandigarh, Goa, Gujarat, Himachal, Haryana, complete list of all states, and उसमें जितने भी colleges हैं which are providing architecture, we have made a list on that. Okay, so refer to this video. Okay, go to this video, refer to this, and then make your own
लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दैट यू वांट टू गो इनटू. सो आप रफली कैसे लिस्ट बनाओगे, तो वो तो रिसर्च से बनाओगे. ठीक है, आपको मान लो आपके स्टेट में 50 कॉलेजेस है, सारे 50 कॉलेजेस को खोल के देखो, रिसर्च करो, कोरा पे उनके बारे में रिव्यू पढ़ो. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप पढ़ो, थोड़ा बहुत तो आपको मतलब मिल ही जाएगा, है ना. स्पेशली आई विल रिकमेंड यू कोरा बिकॉज देयर आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ जेन्युइन maybe students write the reviews and all. So roughly go to the college's website, see the video on YouTube of that particular college, है ना, YouTube पे देखो, और इस तरीके से आप अपना रिसर्च करो रफली हर कॉलेज का. जो आप लिस्ट मैंने आपको बताई है वहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा. ठीक है, दिस इज़ योर टफ पार्ट. यहाँ पे आपको खुद ही समझ आ जाएगा दैट आपको कौन से कॉलेजेस को क्रॉस करना है पहले ही स्टेप में. ठीक है, मैं नहीं अब ये तो बेकार है, इसमें तो नहीं जाना. ठीक है, तो आप मान लो इसमें से आपने 25 कॉलेज ठीक करा. अब 25 भी बहुत है, 25 कॉलेज भी बहुत होते हैं. ठीक है, तो अभी आपको इसमें से भी आपको और ज़्यादा आपको करना है रिसर्च नंबर 2. मतलब आपको अभी और अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा ऑन दीज 25 कॉलेजेस. ओके, वैसे ही दिस नंबर इज़ अ लॉट, आपको इतना नंबर नहीं बढ़ाना है अपना. ठीक है, इसको आपको इतना तो होगा ही नहीं, है ना, इतना तो कॉलेजेस भी नहीं है हर स्टेट में, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर लाइक महाराष्ट्र. हर कॉलेज हर स्टेट में, दिल्ली में खुद ही बहुत ही गिने चुने कॉलेजेस हैं. अंडर आई थिंक 5-6 कॉलेजेस आर ओनली देयर इन दिल्ली ओनली. तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं. ठीक है, तो इतना तो आपका नंबर जाएगा नहीं, थोड़ा ही जाएगा. अब मान लो इसमें से भी आपने एटलीस्ट 5-6 कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया दैट दीज आर द बेस्ट वंस दैट आई कैन फील थ्रू रिसर्च. ओके, now the last step and the most important step will be the visit of the colleges. You will have to visit the colleges and there check the faculty members, interact with the students. लोकेशन मैं रेकमेंड करूँगी कि अच्छी होनी चाहिए कॉलेज की. लाइक वैसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल इमीडिएट लोकेशन क्या है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट व्हाट in what city it is. So usually the colleges which are in metro cities in architecture, you get to see a lot of buildings, you get to have a good exposure over there. So that kind of, so मतलब आपको एक कॉलेज मिल रहा है सपोज बिहार या झारखंड में मिल रहा है, एक आपको दिल्ली में मिल रहा है, दोनों प्राइवेट है, तो दिल्ली वाला रिकमेंड करोगे. तो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू स्टडी फॉर देयर फॉर 5 years. लैपटॉप्स आप यूज़ करने वाले हो, सपोज आपका टेबल है, वहाँ पे प्लग पॉइंट ही नहीं है हर टेबल पे, तो लैपटॉप कैसे चलाओगे, क्लास में काम कैसे करोगे. ठीक है, सेकेंडली ड्राफ्टिंग टेबल्स होते हैं, अगर ड्राफ्टिंग स्टूडियोज़ होते हैं, इफ़ द लाइटिंग इज़ नॉट गुड इन अ स्टूडियो, आपकी आइज़ डैमेज हो सकती हैं. ओके, आपकी आइज़ में स्ट्रेन पड़ सकता है. मेरे खुद आई थिंक दैट मेरा खुद चश्मे का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज द लाइटिंग आई गेस वॉज नॉट प्रॉपर, और इतना बुरा भी नहीं था, मतलब मॉडरेट था. तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. देखो कॉलेज में वाइब कैसी है, क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो रहे हैं, स्टूडेंट स्मार्ट हैं कि नहीं है, वो आपको जाते ही पता लग जाएगा थ्रू द थिंग्स. एंड फैकल्टी इज़ ऑब्वियसली द नंबर 1 प्रायोरिटी, कि वहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं कि नहीं है, क्या फैकल्टी मेम्बर्स SPAs IITs वाले हैं कि नहीं हैं. तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, रिनाउंड आर्किटेक्ट्स आते हैं कि नहीं हैं कॉलेजेस में लेक्चर्स वगैरह के लिए, तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं एकेडमिक वाइज. ओके, सो वंस यू विजिट द लाइक गुड फाइनली रिसर्च्ड कॉलेजेस, जब आप विजिट करोगे तब आपको फाइनली पता लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको टारगेट करना है. बट वही है कि आपके टारगेट करने से क्या होता है. सपोज यू आर इन महाराष्ट्र, तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे सब लोग सर JJ को रखते हैं. आपने टारगेट तो कर लिया बट आपका स्कोर नहीं है. ठीक है, स्कोर ही नहीं है तो कहाँ से एडमिशन मिल जाएगा जब स्कोर ही नहीं है. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो आप टारगेट कर रहे हो कॉलेजेस, अगर आपको श्योर शॉट है कि उसमें एडमिशन आपको चाहिए, तो 100% गाइज यू विल हैव टू increase your NATA score and you will have to basically score as much as possible. Okay, so right now if I lastly talk about the results from SSAC, on Instagram we have also uploaded the results, so you can go and check it there. Last year का result था ये, where 1/3 of the students were toppers like in through JEE BAC, and नाटा का भी नाटा के स्कोर लास्ट ईयर थोड़े नीचे थे, जैसे मैंने बताया कट ऑफ कम था लास्ट ईयर का. इस साल आई थिंक हाईएस्ट इज 175 एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 students have already got 160 plus marks in NATA.
सॉरी हाँ 160 प्लस मार्क्स इन नाटा. सो इस बार काफ़ी ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, बिकॉज इस बार लोग के आ रहे हैं. लास्ट ईयर तो आए ही नहीं थे. 175 तो छोड़ ही दो, किसी के नहीं आए थे 175 लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर थोड़ा कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा है फॉर श्योर. गुड स्कोर. एंड जो जेई का भी रिजल्ट है लास्ट ईयर का इतना अच्छा है, इस बार बीट हो चुका है. अभी फाइनल हमने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है, बिकॉज वी आर स्टिल कॉलिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू गेट द प्रॉपर लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट बहुत प्रॉपर आपको बताना चाहते हैं कि इतने स्टूडेंट्स के इतने आए थे और ऐसा ये पूरा प्रॉपर लिस्ट रहा है. बट in short, the most amazing thing that I will tell you that 30 plus students, I think around 31 or 32 अभी भेजना रह रहा है कुछ बच्चों का रिजल्ट, have got 99 percentile plus marks. So that's the star of the show कि approximately हमने 180 कुछ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया था. like it is between 180 to 190 जितने हमने जेई के लिए जो प्रिपेयर किया था. and उसमें से 30 plus have got 99 percentile plus. So detailed results video will also come really soon. So our results are very good, and I am not telling you to join SSAC, but what I'm telling you that प्लीज़ इंक्रीज़ योर स्कोर. जेई तो चलो अब गया, बट नाटा तो है ना. नाटा का स्कोर जितना इंक्रीज़ कर सकते हो करो, ताकि जितने अच्छी कॉलेज में तुम्हें मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाए, बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. सो स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का तो हो ही जाएगा प्रिपरेशन. सो आई विल रिकमेंड यू दैट प्लीज़ बुक अ फ्री डेमो क्लास विथ अस. मैं हर 1-2 हफ्ते में डेमो क्लास लेती ही रहती हूँ. सो विल रिकमेंड यू जस्ट कम इन द डेमो क्लास, टॉक टू मी, गेट सम गाइडेंस कि हाउ यू कैन गेट इन टू अ गुड आर्किटेक्चर कॉलेज. इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत तो पढ़ना है नाटक के लिए, तो पढ़ लो. ठीक है. और डेमो क्लास करके देखो, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कैसे पढ़ना है, बिकॉज यूट्यूब वीडियो पे कैसे क्या पढ़ना है वो बहुत लंबा हो जाता है. एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया, वो ही इतना लंबा हो गया, तो सोचो पढ़ाई का कुछ बताऊँगी तो कितना थोड़ा टाइम लगता है बताने में. ठीक है. सो जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक ऑन बुक अ फ्री डेमो क्लास. यहाँ पे अपने डिटेल्स डालो, सबमिट करो, एंड डायरेक्टली बुक योर फ्री डेमो क्लास फ्रॉम आवर वेबसाइट सिंपली. तो अभी के अभी डेमो क्लास ज़रूर बुक करो. और अगर वेबसाइट पे भी नहीं जाना है तो सीधा ये नंबर है 8829080615. इसका डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी है डला हुआ. डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, आई वॉन्ट टू अटेंड अ डेमो क्लास. तो अभी आप डायरेक्ट आ सकते हो, मेरे से मिल सकते हो, बातें करो, थोड़ा बहुत अपने डाउट्स क्लियर करो, एंड दैट्स इट. सो आई एम वेटिंग टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट डेमो क्लास, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी कि आपको किस तरीके से अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है और कैसे आपको पता करना है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. दैट इज इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.